वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्तिनिष्ठिके त्वयि। We are studying Canto 1, Passing Away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. Chapter 9, text 30. Tadopasamrita giras, Tadopasamrita gira, Tadopasamrita gira sahasranir, Vimukta sangam manadi purushe, Krishne lasatpita pate chaturbhuje, Pura sthite milita drig vyadharyat, Tadopasamrita gira sahasranir, विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पि पते चतुर्भुजे पुरा स्थिते मीलितदृक् व्यधार्यात् तदोपशाम्येत गिरा सहस्रनीर् विमुक्त संगा मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पि पते चतुर्भुजे पुरा स्थिते मीलितदृक् व्यधार्यात्. Akshay, read the shloka. Sorry. Once again. Ananteshwar Prabhu, will you read the shloka first? आप पढ़ेंगे? Please read the shloka if possible. Yeah, let me try. Tadopasamhritya gira sahasranir vimukta sangam mana adi purushe Krishne lasat pita pate chaturbhuje purastite milita drik vyadharayat. Thank you. Akshay, go ahead. तदोपसंहृत गिरः सहस्रणी विमुक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलित विदधारयत्. पूजा माता जी पढ़िए. तदोपसंहर्ते गृह सहर्षणिर विमुक्त संगम मना आदि पुरुषे कृष्णे लसत्पिता पते चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलित दृग् व्याधर्यत्. नेक्स्ट कोमल पढ़ो. हरे कृष्ण. तदोपसंते गिरे सहस्रे विमुक्त संगम मन आदि कृष्णालसते पिता पते चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलिते दर्याता. ट्राई करो. Okay, join via phone call only then. We are studying 1930. You can open on Vedabase. Okay. 1930. 30th shloka. 30. Huh? Word to word meaning. Hare Krishna. Tada, at that time, upasmritiha, withdrawing, giraha, speech, Sahasrani, Bhishma Dev, who was expert in thousands of science and arts, Vimukta Sangam, completely freed from everything else, Manaha, mind, Adi Purushe, onto the original personality of Godhead, Krishna, onto Krishna, Lasat Pita Pate, decorated with yellow garments, Chaturbhuje, onto the four-handed original Narayana, Puraha, just before, Sthite, standing, Amilita, widespread, Drik, vision, Vyadharya,
fixed. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Thereupon, that man who spoke on different subjects with thousands of meaning, who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men, stopped speaking and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garment that glittered and shined. ये कल हम लोग ये वाला आई थिंक श्लोका पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसी ये श्लोका दोबारा पढ़ लिया तो, मगर एक्सप्लेनेशन अब मैं अगले की ही करूंगी आपको, ठीक है? कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं. आज से विल बी मूविंग टू श्लोका 31. ओके, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं. 31. हाँ, ओके. विशुद्ध धारणया हत्सुभस्तदीक्षैव सुगतयुद्धशम्मा निवृत्ता सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा तुस्तवागणेशजनजनार्दन. By pure meditation, looking at Lord Shri Krishna, he at once got free from all material inauspiciousness and was relieved of all bodily pains caused by the arrows, wounds. Thus all external activities of the sense at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting this material body. I think ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मगर मैं फिर भी इसका ट्रांसलेशन थोड़ा हिंदी में बता. कि क्या होता है, जब भी हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि एक योगी के लिए कि एक सही समय क्या होता है मृत्यु का, क्योंकि उन्होंने अपनी तपस्या से क्या है, उनकी इच्छा होती है कि कब वो अपना शरीर त्यागना चाहें, तो वो एक सही समय का वेट करते हैं कि तब जब उनके लिए एक ऑस्पिशियस टाइम हो. जैसे जब सूर्य नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करता है, जाना शुरू करता है उत्तरायण दिशा की तरफ, तो उस समय मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन टाइम होता है. उस समय अगर एक योगी अपना शरीर छोड़ता है, अपनी प्राण वायु को यहाँ आईब्रोज के मध्य में लाके, बीच में लाके पूरी तरह कंसंट्रेट करके अगर वो शरीर छोड़ता है, वो भी यहाँ सिर के ऊपर से, तो उसका जो डेस्टिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है. तो ये भीष्म पितामह को भी पता था, क्योंकि उनके पास भी इच्छा मृत्यु का वरदान था जो उनके पिताजी शांतनु ने दिया था. दो वो ये जानते कि एक ऑस्पिशियस टाइम पे शरीर छोड़े तो ऐसा होता है वैसा होता है, मगर कल हम लोगों ने देखा कि भीष्म पितामह जो भक्त होता है वो इन सब चीजों में एक्चुअल में दे डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, वो इन सब डिटेल्स में नहीं जाते कि कब शरीर छोड़े कब नहीं छोड़े. उनके लिए ऑस्पिशियस टाइम कब है, जब भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने स्वयं उनके इष्ट देव चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दे रहे थे और इतने भक्तगण उनके आसपास थे. उपदेश वो युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे, एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर हिम टू लीव द बॉडी. तो भीष्म पितामह के लिए वो एक सही समय था शरीर छोड़ने का. ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट पॉइंट ये होता है कि भक्त एक ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस टाइम को नहीं देखते. ठीक है, अगर उन्हें पता भी हो कि ये टाइम सही है ये टाइम गलत है, उनके लिए ऑस्पिशियस टाइम क्या है, जब भगवान कृष्ण का अगर वो चिंतन कर रहे हैं. जैसे किंग कुलशेखर महाराज भी, कल मैंने प्रेयर सुनाई थी आपको, वो क्या प्रार्थना करते हैं कि अभी जो मेरा मन है वो आपके चिंतन में है. मैं आपको रीड करके सुना दूंगा प्रेयर. प्रभुपाद को बहुत पसंद है ये प्रेयर, मुकुंद मला स्तोत्र से 30वां नंबर की 33वां श्लोक है ये, मुकुंद मला स्तोत्र से 33वां श्लोक. क्या कहते हैं किंग कुलशेखर उसमें, कृष्णा त्वादीय पद पंकज पंजनांतम आद्वैव मे विशतु मानस राज हंस प्राणपरायण समय कपपात वित्त कंठावरोधन विधाव स्मरणम कुतस्ते. क्या कहते हैं, ओ लॉर्ड कृष्णा, अभी इस समय क्या प्रार्थना करते हैं किंग कुलशेखर, दोबारा निकालना पड़ेगा. आज तक यू कॉल्ड आई फॉरगॉट द वर्ड. खैर मैं ऐसे ही बता दूं, वो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि अभी जो मेरा मन है, जो हंस के तरह वो अभी आप पे चिंतन कर रहा है. ठीक है, अभी बुढ़ापा नहीं है, मैं अच्छी कॉन्शियसनेस में हूँ. जब मृत्यु का टाइम आएगा तो पता नहीं मेरी चेतना कहाँ होगी या कैसे मैं याद कर पाऊंगी. नहीं, कि कृपया आप मैं इस समय अपना शरीर छोड़ो, ये बेस्ट टाइम है. तो भक्त के लिए ऑस्पिशियस टाइम कब है, जब वो भगवान का चिंतन कर पा रहा हो. ठीक है, ऐसी अवस्था में शरीर छोड़े तो ये उसका बेस्ट टाइम माना जाता है.
ठीक है, तो वो बाकी डिटेल्स में नहीं पढ़ता। जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है, इस समय छोड़ोगे तो ऐसा है, यहाँ जाओगे वहां जाओगे। भक्त लोग इन एलिमेंट्स नहीं पढ़ते। ठीक है, तो ये वाला श्लोक है, श्री भीष्म उवाच, पता नहीं ये भी पढ़ा था कि नहीं, बट चलिए। श्री भीष्म उवाच इतिर्माते उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सत्पथपुंगवे विभूमनि स्वासुखम उपागते क्वचित् विभारतुम प्रकृतिम उपयेषु यद भाव प्रभवा। क्या कह रहे हैं? भीष्म देव से लेट मी नाउ इन्वेस्ट माय थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। नहीं, ये कलम नहीं। तब भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं सुनिए, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि अंतिम समय हमारा ध्यान है। उनको तो फिर भी पता है कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं, हमें नहीं पता है, मगर हमारी चेतना अभी से हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेट मी नाउ इन्वेस्ट माय थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग which were so long engaged in different subjects and occupational duties in the all powerful Lord Shri Krishna. He is always self-satisfied, but sometimes, being the leader of the devotees, he enjoyed transcendental pleasure by descending to the material world. Although from him, only the material world is created. यहाँ पे भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि अभी इस क्षण से मैं क्या अपनी जो पूरी एनर्जी है वो कहाँ लगाऊं, कहाँ पे लगे? वो भगवान के चिंतन में, उनको महसूस करने में, उनके लिए कार्य करने में। देखिए, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, ये 3 स्टेप्स हैं। कोई भी हमारे में देखिए कोई इच्छा होती है तो पहले उसको कोई विचार आता है, हमारे मन में चिंतन होता है ना, फिर हमें फील होता है कि नहीं ये मुझे करना चाहिए, और ये करने के चक्कर में फिर हमारे एक्शंस में आता है, इट इज विलिंग। ठीक है, तो कोई भी चीज है जो हमारे एक्शंस में आती है तो पहली शुरुआत उसकी चिंतन से होती है। थिंक, वी थिंक अबाउट, उसके बारे में फिर हम क्या कहते हैं, फील आता है कि नहीं अभी करना है, एंड वो हमारे एक्शन में भी आता है। इसलिए जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, इसको प्रॉपरली यूज करना सभी लोग, क्योंकि अगर ये किसी गलत एक्टिविटी पे है तो जैसे ही वो फील की स्टेज पे है तो उसको ज्ञान की तलवार से काट देना। ठीक है, तो अगर भगवान की सेवा के लिए फिर तो उसको जाने दीजिए। तो यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे हैं कि अभी क्या मेरा जो चिंतन है, जो फील है या कार्य जो भी मैं करना चाहता हूँ वो क्या है, भगवान की, जो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कौन है, मेरे मतलब जो पहले मैंने कितने सारे जो भी मेरे डिफरेंट एंगेजमेंट्स रही हैं या ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज रही हैं वहां पे रही हैं। अब ये है कि मैं सारी कहाँ पे एंगेज करना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण पे। एक कहा कुरु नंदना। हम भी अभी भौतिक जगत में आप बोले कि हम लोग एक फिक्स माइंडेड है, हाँ सवे मना कृष्ण पदार्थ विंदे हो, बोलते तो हैं मगर एक कुरु नंदना है नहीं। हम बहुशाखा है। बहुशाखा मतलब मैनी ब्रांच्ड। हमारा जो प्रेम है वो मैनी ब्रांच्ड है, हमारी जो अटेंशन है वो मैनी ब्रांच्ड है। इट्स नॉट ऑन कृष्णा ओनली। ठीक है, सिर्फ कृष्ण पे नहीं है, बाकी सारी जगह। सिर्फ कृष्ण पे नहीं है, बाकी सारी जगह। थिंकिंग फीलिंग विलिंग बहुत बार आती है हमें, मगर किसी और कार्य के लिए, भगवान की सेवा के लिए नहीं आना। ठीक है, तो हमारा ये जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है, अभी पहले तो हमारी भौतिक जगत में हमारी जॉब्स हैं या पढ़ाई है या कई रिश्ते हैं, नाते हैं हमारे बड़े सारे, तो इन सब जगह पे होता है। अगर यदि आप कृष्ण को सेंटर केंद्रित करते हुए करेंगे तब एक कुरु नंदना, और ये चिंतन करना और एक्शन पूरी तरह से कृष्ण भावना में तो के आपको कर्म के बंधन से मुक्त करेगा। सो ये हमेशा कृष्ण को सेंटर में रखिएगा हर चीज के। ठीक है, कल कौन कह रहा था कृष्णा शुड बी द प्रियोरिटी, हु वाज सेइंग दैट कि कृष्ण हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए। चलो कोई भी कह रहा हो, तो कृष्ण हमारी फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए, है ना। जैसे खाना हम लोग बनाते हैं तो अब पूड़ियाँ आप तल रहे हो, ये अपने सब्जी क्या नाम है चावल चढ़ाए हैं, तो जो पूड़ी है वो पहले बर्नर पे होगा ना, फ्रंट वाले में, और जो चावल है वो पीछे के बर्नर में, वो तो अपना सीटी बजा के बन जाएंगे, मगर पूड़ियों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसको हाँ हिलाना डुलाना पड़ता है, तो मतलब वहां ज्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से कृष्ण पे फोकस हमारा मेनली होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट प्रियोरिटी। बाकी चीजें सेकेंड बर्नर पे, सेकेंडरी। जब पहला हमारा रिलेशन कृष्ण के साथ कनेक्शन अच्छा है, तभी कहते हैं ना मॉर्निंग प्रोग्राम पे बहुत एम्फसाइज किया जाता है। अगर आपका मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है तो आपकी दिन की सारी दिनचर्या बहुत अच्छे से चलती है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं सुबह से लेकर 9 बजे तक का समय अपने आप को दो, और उसके बाद आप बाहर जाते हो कोई बात नहीं, बैटरी चार्ज है आपकी। मतलब सुबह उठते हैं, मंगल आरती से पहले जप है, फिर मंगल आरती है, फिर हम कुछ कथा सुनते हैं, ठीक है, ये रीडिंग करते हैं। जैसे 8 बजे हमारे इस्कॉन मंदिर में भागवतम होती है, यहाँ पे भी आप सुन रहे हैं,
8 से 9 बजे फिर प्रसाद होता है। फिर हम सभी अपने अपने कार्य पे, अब तो खैर कोरोना घर पे बैठे हैं सारे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मतलब फिर हम बाहर जाते हैं, मगर 9 बजे तक अपनी पूरी बैटरी चार्ज है कि नहीं। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं हम ध्यान देते हैं ना कि मोबाइल चार्ज है, तो उसी प्रकार से अपनी बैटरी भी चार्ज करके चला करो पूरी तरह कृष्ण भावना में, ताकि बाहर का इन्फ्लुएंस कम हो आप पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भीष्म पितामह पूरा चिंतन का है, उन पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और इन्होंने कहा कि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्माराम है वो, वो स्वयं संतुष्ट रहते हैं, उनको अपने प्लेजर के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आत्मसंतुष्ट नहीं है ना, हमें कोई ना कोई तो चाहिए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, मगर भगवान के साथ ऐसा नहीं है। और यहाँ पे क्या बोले, बीइंग द लीडर ऑफ द डिवोटीज। लीडर ऑफ द डिवोटी मतलब भक्तों के लीडर है ना। भगवान भी कई बार कहते हैं भक्तों की सेवा में सबसे सर्वोपरि रहते हैं। भगवान को भी पता है कि भक्तों की सेवा कितनी उच्चतम है, तो स्वयं भगवान भी बहुत आतुर होते हैं अपने भक्तों की सेवा करने के लिए। और लीडर इन द सेंस वो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर भी तो वही है ना सभी भक्तों के, भगवान कृष्ण ही है। सबसे केंद्र बिंदु कौन है, भगवान कृष्ण है। तो वो तो अपने गोलोक धाम में, जहाँ पे इतनी सहस्त्र लक्ष्मी है, चिंतामणि धाम है, हाँ, चिंतामणि प्रकृसदमशु कल्प वृक्ष, लक्ष्मी सहस्त्र तत संभ्रम सेव्य मानव। हाँ, इतनी सारी लक्ष्मी है, सेवा कर रही हैं, सब कुछ इतना मस्त है वहां पे, उनको भौतिक जगत में आने की क्या जरूरत है। हमारी तरह तो नहीं आ रहे वो भी कि मुझे भी इंजॉय करना है, मगर हम इंजॉय तो नहीं कर रहे, हम तो सफर कर रहे हैं। तो भगवान जो उन्होंने खुद बनाया है, यहाँ पे वो इंजॉय करने नहीं आते, मगर हम जैसे पतितों के उद्धार के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। दुष्कृता नाम मामूढ़, क्या कहते हैं, परित्राणाया साधु नाम दुष्कृता नाम मामूढ़, कि जो साधु होते हैं उनके आनंद के लिए, और जो पापी लोग हैं उनके संहार के लिए भगवान पृथ्वी पे आते हैं। तो ये भी भगवान की एक दया है कि वो खुद डिसेंड होते हैं, धरती पे आते हैं पुनः पुनः। कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, कि जब भी धर्म में ग्लानि होती है, गिरता है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और ये भी भगवान की कृपा है कि भगवान कई बार तो अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद को भेजा उन्होंने हमारे उद्धार के लिए। और स्वयं भगवान भक्त रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप। कौन सा ऐसा भगवान है, जैसे अकबर ने बीरबल से एक बार सवाल पूछा गया, तो तुम्हारे भगवान बड़े हुए हैं, इनको कुछ है ही नहीं, इतने पावरफुल है कि किसी और को क्यों नहीं भेज देते हैं, खुद क्यों आ जाते हैं बार बार। तो लगता है इनके पास ना पावर नहीं है, या अपने इनके पावरफुल सेनापति वगैरह कुछ नहीं है, ये खुद ही आ जाते हैं। बड़े तुम्हारे भगवान बड़े सेंटिमेंटल से हैं, बड़े जल्दी आ जाते हैं। तो बीरबल ना अपनी चतुराई के लिए और अपने सही उत्तर, सटीक उत्तर के लिए बहुत जाना जाता है। तो बीरबल ने थोड़ा इमीडिएटली आंसर नहीं दिया, मतलब चलो ठीक है, इनको भी बताएंगे अब। तो एक बार नौका विहार के लिए जा रहे होते हैं, तो अकबर का भी पोता मतलब बैठा हुआ ही होता है, तो उसको भी लेके जा रहे होते हैं नदी में, नौका के ऊपर। तो बिठाया होता है कई सेनापति, अब राजा तो सेना भी जाएगी साथ में, थोड़े कुछ सैनिक वगैरह ही बैठे होते हैं। तो जब बीच मझधार में पहुंचते हैं, बीचों बीच नदी के पानी के पहुंचते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का जो बेटा है वो नदी में गिर गया है। ठीक है, और अकबर क्या है, अकबर बिना कुछ आओ देखा ना ताओ देखा सीधा नदी में कूद जाते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। जब देखते हैं तो वो पुतला होता है। तो अकबर बीरबल से कहते हैं कि ये क्या मजाक था, मतलब किस तरह का मजाक तुम एक अपने राजा से करते हो। तो बीरबल ने क्या कहा, बोला कि जब आप अपने बेटे को आपने मुश्किल में देखा तो आप स्वयं कूद गए, इतने सारे सैनिक थे, मैं भी था, हम सब थे, किसी को भी बोल सकते थे, आप क्यों कूद गए। तो बोला मैं कैसे वेट कर लूं, मैं कैसे वेट करता तुम लोगों को, और क्या भरोसा तुम मेरा खुद का कुछ हो जाता तो। भगवान बोलते उसी, बीरबल कहते उसी प्रकार से भगवान स्वयं आते हैं। अब आपको प्रतीत हुआ, क्योंकि भगवान समझते हैं ये मेरे हैं, तो इनका मैं खुद ही बचाव करूं, वो वेट ही नहीं करते हैं, तुरंत आ जाते हैं। तो ये एक भगवान की बहुत दया भाव है, ये कृपा है हम पे कि भगवान स्वयं धरती पे आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं हमको आकर्षित करने के लिए, और अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं हम पतितों के उद्धार के लिए। ठीक है, तात्पर्य प्रपद बता रहे हैं यहाँ पे, कहते हैं because Bhishma Dev was a statesman, the head of the Kuru dynasty, a great general and a leader of Kshatriya. His mind was strewn over so many subjects, and his thinking, feeling, and willing were engaged in different matters. अब ये जो चीज है मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, शायद मैंने पहले भी चर्चा की हो, कि जो भीष्म पितामह है वो कैसे एटमॉस्फेयर में, पूरा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जहाँ चारों ओर क्या राजनीति है, कोई कैसा षड्यंत्र चल रहा है, कोई कैसा चल रहा है,
और क्षत्रिय होने के कारण लीडर भी हैं तो बहुत सारे कार्य भार है उनपे। ये तो है नहीं कि शांति से बैठे तो हरिनाम करेंगे, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और पूरा एटमॉस्फेयर भी कोई पॉजिटिव नहीं है कि वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध है या हरिनाम हो रहा है, हरी जगह हरि कीर्तन हो रहा है। पांडव तो पांडवों की साइड है, अब ये कौरव की साइड, क्योंकि धृतराष्ट्र थे तो उनकी साइड पे थे, तो मतलब ध्यान देते थे। तो काफी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है। ऐसे एटमॉस्फेयर में भी उनका चिंतन भगवान पे होना बहुत सराहनीय है और बहुत मतलब सीखने की बात है हम लोगों के लिए। कि हम लोग बोलते माता जी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं, घर वाले भक्ति नहीं करने देते, ऐसा होता है, ये है वो है। भाई आप इन हमारे महाजनों से पढ़िए ना, इनके चरित्र को पढ़िए, देखिए। तो ये अगर हम पढ़े तो भीष्म पितामह के लिए कौन सी यहाँ पे बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है। एटमॉस्फेयर इतना बेकार है, कितना पॉलिटिकल वाला है, इतना इश्यूज है, इतनी वो है कृष्णा। मगर हमारे लिए तो फिर भी बेहतर है, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, तो कहते हैं एक्सक्यूज, कहते हैं इग्नोरेंस। जो कुछ नहीं करना चाहते उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना जरूर रहेगा। जो करना चाहते हैं उनके लिए बहाने होते हुए भी बहाने नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए जनरल है। इस माइंड क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर पे हैं, कई चीजों के बारे में सोचते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस, देखिए अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या चाहते हो। अगर आप शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहते हैं तो क्या करना है हमें। इन ऑर्डर टू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रभुपाद ने बहुत मेंशन किया है, इन ऑर्डर टू अचीव प्योर डिवोशनल सर्विस, कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए he wanted to invest all powers of his thinking, feeling, willing entirely in the supreme being Lord Shri Krishna। तो शुद्ध भक्ति अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमारा चिंतन, जो हमारे कुछ करने की इच्छा या कुछ एक्शंस हैं, वो कहाँ पूरी तरह हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए, भगवान कृष्ण पे। जैसे कल ही बात करी थी, हमारा चिंतन कहाँ है, हमारा ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन क्या है। हाँ, मन मना मद भक्त मन याजी मम नमस्कुरु, भगवान कहते हैं मुझ पे चिंतन करो, मगर हमारा तो कहीं और ही जाता है। तो अगर हमें शुद्ध भक्ति चाहिए तो हमें भगवान पे अपना पूरा चिंतन लगाना पड़ेगा। हाँ, BMW बॉडी माइंड एंड वर्ड, अपने शरीर मन वचन पूर्णता भगवान की सेवा में होने चाहिए। जिससे क्या है, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे तो शुद्धि होगी और भगवान का चिंतन बाय डिफॉल्ट आएगा, लीला स्मरणम अपने आप आएगा, नहीं तो दिक्कत की होगी। ठीक है, तो हमारे कई लोग कर्म मिश्रित भक्ति भक्त हैं। हम क्या चाहते हैं, थोड़ी माया भी चाहते हैं, थोड़ी भक्ति भी चाहते हैं। तो ये जो मिश्रित भक्त होते हैं उनका क्या हाल होता है, दो नाव पे सवार हो, डूबोगे ही डूबोगे। तो हुबू डूबू भाई, आप डूबोगे डूबोगे, सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, सो ही डिस्क्राइब्ड हियरइन एज द लीडर ऑफ द डिवोटीज एंड ऑल पावरफुल। तो यहाँ पे भगवान को लीडर बताया गया है। Although Lord Krishna is the original personality of Godhead, he himself descends to earth to bestow upon his pure devotee the boon of devotional service। जैसे मतलब भगवान अपने भक्तों के लिए शुद्ध प्रेम भक्ति देने के लिए आते हैं। अब देखा जाए तो देखिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता की अंतिम इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन बताएगा, बताइए। यस, व्हाट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता, क्या इंस्ट्रक्शन है भगवद गीता की आखिरी। यस बोलिए। यस प्रभु। सर्वधर्मान परित्यज्य। यस, मैंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, इधर से आस्था भी कह रही सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान ने बोला कि मेरी शरण लीजिए। ठीक है, सब अबंडन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी। भगवान ने तो बोला शरण कर दो, शरणागति हो जाओ। करनी कैसे है अब ये तो पता नहीं हमें कैसे करनी है, बस बोल दिया करो, अब करें कैसे। तो देखो खुद वो सिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्त बन के कि किस तरह से शरणागति करनी है। हरिनाम कीजिए, क्या है, श्रवणम श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद से आत्मनिवेदन सेवन दास्य साख्यम। सो ये नवदा भक्ति की बात थी। और पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र की बात चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से सीखा, अपने आचार्य प्रभु सबूर सिखाए कि अपने से जो आचार्य है या भक्तगण वो अपने आचरण से सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दिखाया किस प्रकार से शरणागति होना है, किस तरह से एक विप्रलंब भाव है, वो सेपरेशन है। क्या है, गोविंद विरहन में क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट वाज दैट शिक्षास्त्र कंपेयर, किसको याद है वो, जगत शून्यम, मुझे एग्जैक्ट लाइन नहीं याद आ रही।
प्रिया तुम्हें याद है प्रिया? व्हाट वाज द श्लोक? शून्ययितम जगत सर्वम गोविंदः विरहेन में, सॉरी, शून्ययितम जगत सर्वम गोविंद में। ये पूरा जगत मुझे शून्य लगता है, कुछ है नहीं गोविंद के विरह में। हमारे पास तो विरह नहीं है, गोविंद का नहीं पता तो विरह कहाँ से आना है? तो शून्य कहाँ से लगेगा? हम तो बड़ा भरा भरा लगता है। बोले कि माता जी कहाँ शून्य है, इतना सब कुछ बाहर देखने को है, सुंदर चीजें हैं, विरह कहाँ है? शून्य कहाँ दिख रहा है हमें? आपको कहाँ से शून्य दिख रहा है? तो जो भक्त है उसको तो दिखता ही है ना भगवान कितना शून्य है। तो शून्य ये तब जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु दिखाए हमें भक्त की कैसी चिंतन होता है। तो ये हमें सीखना है वहां से। यहाँ कहते हैं इट डिस्क्राइब्ड हियर इन द लीडर ऑफ डिवोटी। तो भगवान स्वयं धरती पे आते शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए, बून हमें देने के लिए। तो देखिए प्रेमा भक्ति बड़े आसानी से हम सबके पास गली गली गांव पे है। जैसे बताया कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। सो बोथ आर लीडर्स ऑफ प्योर डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु भी लीडर थे सभी भक्तों के। सारे पांच जो हमारे पंच तत्व हैं, ठीक है, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, गदाधर, श्रीवास, ये सब उनके साथ में एसोसिएट्स हैं। 5 लोग आए, पूरा कीर्तन संकीर्तन चलाया, मूवमेंट चलाया। तो तब से हमारा भक्ति कल्ट शुरू हुआ ये वैष्णविज्म का, और स्वयं दिखाया किस तरीके से भक्ति करनी है, ठीक है। So devotee of the Lord have no desire other than the service of the Lord. Therefore they are called sattvatah. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, प्योर डिवोटीज, उनको भगवान की सेवा के अलावा उनके पास और कोई सेवा नहीं है। They have no इच्छा, क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषित शून्यम, कि बाकी जो अन्य अभिलाषा कोई नहीं है, उनमें एक ही अभिलाषा है। वो क्या है? क्या है उनकी? भगवान की सेवा करना। इसलिए क्या, मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मतलब आपके कुंज में, विलास कुंज में मुझे वास मिले, भक्तों की सेवा मिले, यही, और भगवान की सेवा मिले, यही भक्तों की एक इच्छा होती है, बाकी कोई इच्छा नहीं। इसलिए उनको सत्वता कहा जाता है। तो कहते हैं द लॉर्ड इज द चीफ अमंग सत्वतास। तो भगवान में, भगवान चीफ है उसमें, ठीक है। शुद्ध भक्तों में भी शुद्ध भक्त हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। उनकी भी एक ही इच्छा थी ना, भगवान की लीला स्मरणम, उनका हरि संकीर्तनम। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु 24 घंटे भगवान के विरह में कंदन करते थे और संकीर्तन का प्रचार करते थे। तो भीष्म देव therefore had no other desire। अब भीष्म पितामह में और कोई इच्छा नहीं है। Unless one is purified from all sorts of material desire, the Lord does not become one's leader। ओ कृष्णा, see, जब तक कोई पूर्णतः अपनी इच्छाओं में शुद्ध नहीं हो जाता, भौतिक इच्छाओं से, तब तक भगवान उसके लीडर नहीं बनते। हम चाहते हैं ना कि हमारे लीडर बने और हमें साथ में लेके जाएं। तो हमारे में भी कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए, वो शुद्ध हो जाएगी। सो डिजायर्स कैन नॉट बी वाइप्ड आउट। अब हम बोले कि मैं इच्छा ही ना करूं, पॉसिबल नहीं है, है ना। दे हैव ओनली टू बी प्यूरिफाइड। अब इच्छाएं तो हम सब में कई तरह की हैं, मगर कहते हैं भौतिक इच्छाएं है ना, तो हमें उनको बस शुद्ध करना है। और शुद्ध कैसे करना है? भगवान भगवद गीता मेरा फेवरेट श्लोक है 10.10, तेषां सततम युक्तानां भष्टं प्रीतिपूर्वकं दामी बुद्धि योगम तम तेन मम उपयन्ति ते। भगवान कहते हैं, जो the Lord himself has that he gives his instruction from within the heart of pure devotee who is constantly engaged in the service of the Lord। तो जो भगवान की सेवा में constantly, constant मतलब no gaps, तो अगर भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसे भक्त को भगवान हृदय से क्या है, गाइड करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आप किस तरीके से मुझ तक आओ। मुझे ये श्लोक इसमें ये इतना पसंद क्यों है? क्योंकि मुझे खुद स्वयं लगता है कि मुझ में कोई गुण नहीं है, या कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है कि भगवान की मैं सेवा कर सकूं, और मुझे कुछ पता भी नहीं कि क्या करना चाहिए। तो मगर एक उम्मीद यहाँ से मुझे आती है कि अगर मैं सेवा में लगी रहूं तो भगवान मुझे खुद ही अंदर से बताएंगे कि क्या करना है। तो मतलब हमारे लीडर खुद बन जाएंगे हमारे हृदय में कि ये करो। तो उसके लिए करना क्या? भगवान की सेवा में लगो। तो ये मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि अगर मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, कई बार बड़ी बिविल्डर्ड स्टेट में होते हैं, तो मुझे यहाँ से बहुत उत्साह मिलती है, बड़ी उम्मीद मिलती है कि अगर मैं सेवा में लगी रहूं तो भगवान स्वयं मुझे अंदर से गाइड करेंगे कि क्या करना है। मुझे क्या, आप सबको करेंगे, हम सबको करेंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं खुद बताऊंगी आप मुझ तक कैसे आओ। तो खुद बताएंगे आप क्या पढ़ो, क्या करो, क्या प्रेरणा खुद देते हैं हमें अंदर से, कि खुद के अनुभव भी हैं। तो हमें क्या है, मगर भगवान की सेवा में लगना है। So such instruction is given not for any material purpose but for only going back home, back to Godhead। अब ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस है भगवान किसी भौतिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए नहीं है,
बल्कि भगवत धाम जाने के लिए। तो फॉर द ऑर्डिनरी मैन हु वांट्स टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, द लॉर्ड ओनली सैंक्शंस एंड बिकम द विटनेस ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कल भी हमने बात की कि भगवान की सैंक्शन और विल में इच्छा अंतर है। भगवान की विल क्या है? सर्वधर्म परित्यज्य मेरी शरण लो, सब पापों से मुक्त करके भगवत धाम चलेंगे। हाँ, और सैंक्शनिंग क्या है? हम भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत भगवान का सैंक्शन है, फैसिलिटी है। हम आना चाहते थे, होगी फैसिलिटी, ठीक है। तो भगवान हम जो भी करना चाहते हैं वो भक्तों को क्या, मतलब मनुष्य को सैंक्शन करते हैं, मगर उनकी इच्छा नहीं होती। तो जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक वृक्ष पे 2 पंछी बैठे हैं, एक पंछी उस वृक्ष के सारे फलों को खा रहा है और दूसरा पंछी चुपचाप बैठ के उसको देख रहा है, विटनेस कर रहा है। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मा जैसे अपने कर्मों के अनुसार ये फल एक्शन रिएक्शन चल रहा है उसका, तो जो परमात्मा है वो उसकी एक्टिविटीज को विटनेस कर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ये, और वेट कर रहे हैं पेशेंटली कि ये मेरी तरफ मुड़ के देखे कभी, बट हम देखते ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, he never gives the non-devotee instruction for going back to Godhead। अब भक्त को देखा है कभी अंदर से उसको प्रेरणा आई हो? अब भक्त कहते हैं ना, वही मैं कल बताया थी कि सुपर सोल हर किसी के हृदय में, जैसे एक माचिस में अग्नि होती है, मगर माचिस में भी अग्नि कब मैनिफेस्ट होती है? जब वो स्ट्राइक होती है। उसी प्रकार से सुपर सोल जो परमात्मा, वो हर किसी के हृदय में, मगर ऐसा नहीं कि मैनिफेस्ट हर किसी को हो रही है, हर कोई आवाज सुन पाता है। वही सुन पाता है जो भगवान के संपर्क में, शास्त्रों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा। तो मैं सुपर सोल फिर उसको अंदर से गाइड करते हैं। आप पहले किसी को वो लाइबिलिटी भी तो दो। हम भी जब किसी को, हम कहते हैं ना, हमारे भी कई संबंध हैं भौतिक जगत में, या ऐसे भी स्पिरिचुअल भी, हम कई भक्तों के साथ में बड़े अच्छे हमारे संबंध होते हैं, ठीक है। तो हम उनको अगर जितना लाइबिलिटी हम किसी को देते हैं, वो व्यक्ति उतना ही हमारे साथ इंटरफेयर कर पाता है या उतना हमें बोल पाता है। हम किसी के साथ बड़ा फॉर्मल हो जाए तो वो आप पे हक के साथ आपको डांट नहीं सकता या बोल नहीं सकता अगर कुछ गलत कर रहे हो। अगर आपने उसको वैसा कंफर्ट दिया है, वैसा आपका संबंध है, तो व्यक्ति हक से आपको बोलेगा देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ऐसे किया करो, ये किया करो, तो बोल सकता है। अब अभक्त है, वो भगवान के चिंतन में नहीं, नास्तिक है, तो भगवान उसको क्या गाइड करें? और अगर गाइड भी करेंगे तो क्या वो सुनेगा? नहीं। तो इसलिए नॉन डिवोटी को भगवान गाइड नहीं करते। कहते हैं खाने के लिए एपिटाइट भी होना चाहिए, मतलब भूख, खाने के लिए भूख भी तो होनी चाहिए। भूख नहीं है तो खाओगे कैसे? हाँ, अब मैं इतने सारे अब व्यंजन बना दूं, हाँ, बड़ा अच्छा फीस्ट मैंने बना दिया, मगर आप लोग फुल हो, आप लोगों को भूख ही नहीं है, तो आप में इच्छा होगी वो खाने की। आंखें तो फिर भी बोलेंगे कि चल खा ले, मगर आप खा नहीं पाओगे उसको, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट। आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं करोगे, इतनी सारी आइटम्स बनी है, मगर अब आप 3-4 दिनों के भूखे हो, कुछ खाने को नहीं है, तो अगर खिचड़ी भी मिलेगी आप बोलोगे हाँ, संतुष्टि है ना। तो एपिटाइट है कहीं खाने का। अब वही भगवान कह रहे तुम्हें इंस्ट्रक्शन लेने नहीं, एपिटाइट ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बताऊं? तो भगवत गीता का जो पहला श्लोक, पहला चैप्टर है, उसमें आपने देखा भगवान ने कोई इंस्ट्रक्शन देते हुए, भगवान ने भगवत गीता में एक भी श्लोक नहीं बोला है फर्स्ट चैप्टर में। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अर्जुन सुनना ही नहीं चाहता था। वो अपना बता रहा है कि यहाँ तो ऐसा है तो वैसा है, ये ऐसा हो जाएगा, लड़ाई नहीं करनी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले तो कृष्ण को बोलते हैं बीच में लेके जाओ, तो बीच में जब लेके जाते हैं, अरे ये तो सारे मेरे रिश्तेदार है, कैसे मारूंगा? भगवान कुछ नहीं कहते हैं। दूसरे अध्याय में जब अर्जुन कर्पण्य दोष, मतलब सॉरी, जब अर्जुन भगवान को शरणागत होता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे इंस्ट्रक्शन दो, तब भगवान बोलना शुरू करते, कहते नहीं आप इसमें थोड़ी आ गई है कि ले सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो उसी प्रकार से परमात्मा भी उसी को गाइड करते हैं जो लेना चाहते हैं, जिनमें सिंसियरिटी है, भक्तों को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, so he never gives the non-devotee instruction for going back to God, and this is the difference in dealing by the Lord with different living being, both the devotee and the non-devotee। तो ये भगवान की अलग अलग डीलिंग है अभक्त और भक्त के साथ। भगवान क्या है, पार्शियल नहीं है, सबको जो मिनिमल चीजें सबको मिल रही है, हवा पानी सबको मिल रहा है, मगर वही बात है भगवान कहते हैं जो जितना शरणागत है मैं उस हिसाब से उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ, ठीक है। आपको 1% कृष्णा चाहिए, अब 1% शरणागत होते हो, 100% कृष्ण चाहिए तो पूर्णतः शरणागत हो जाओ। हाँ, आप पे निर्भर है, आप कैसा संबंध चाहते हो। हाँ, बस आप नॉर्मल हाई हेलो वाला चाहते हो कि ज्यादा और इंटीमेट चाहते हो कि बहुत ज्यादा गहन रिश्ता चाहते हो, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है। कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, आपकी अपनी मर्जी, आप कितनी प्रगति करना चाहते हैं। तो अगर पूर्ण प्रगति करना चाहते हैं तो पूर्ण शरणागत शो कीजिए,
तो कहते हैं ही इज लीडर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग एज अ किंग ऑफ द स्टेट रूल्स फॉर द प्रिजनर्स एंड द फ्री सिटीजन्स। कि भगवान जैसे एक लीडर होता है, जिसको सॉरी ये मीटिंग खत्म होने वाली है तो ये थोड़ा सा रहता है, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग ये परफेक्ट कंप्लीट कर लें। प्लीज कम अगेन। हरे कृष्णा, आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, तो ये भगवान का एक अंतर यहाँ दिखता है। तो कहते हैं कि जैसे एक लीडर है, राजा है, तो वो दोनों को देख रहा है ना, चाहे वो लोग जेल में है या फ्री सिटीजन है, दोनों को देख रहा है। तो इसी प्रकार भगवान भी, चाहे भक्त है अभक्त है, दोनों के ऊपर लीडर उन्हीं के होते हैं, मगर डीलिंग दोनों के साथ अलग अलग है। ठीक है, अब जहाँ प्रहलाद महाराज की स्वयं रक्षा कर ली, नरसिंहदेव बन के आ गए, वहां भक्त के साथ तो ऐसा नहीं है ना। तो नॉन डिवोटी नेवर गेट टू टेक एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लॉर्ड एंड देयरफॉर द लॉर्ड इज साइलेंट इन देयर केस। क्योंकि अब भक्त कोई इंस्ट्रक्शन लेना नहीं चाहता तो भगवान उसको इंस्ट्रक्शन देते भी नहीं। ऐसे भक्तों के केसेस में भी होता है, जब भक्त सुनना नहीं चाहता, मतलब जो भक्ति में भी, हमारे भक्ति में भी कई भक्त ऐसे हैं सुनना नहीं चाहते, अपनी मनमानी करके भक्ति करना चाहते हैं, चाहे वो उनको पता कि उनके कुछ ऊपर गाइड है, मेंटर है, गुरुजन है, तो गुरुजन भी आज्ञा देते हैं ऐसा करो। अब गुरुजनों को भी पता है कि जो नहीं फॉलो करते फिर बोलते हैं चल तू छोड़, तू क्लास में यार बहुत, उसको फिर इंस्ट्रक्शन इतना नहीं देते। तो किसको बार बार सेवा मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, जो सिंसियर हो, हाँ, जो भाई आज्ञा का पालन करे, तो उनका संबंध भी भक्तों के साथ वैसे है। कई भक्तों की सुनते नहीं है, नहीं सुनना ठीक है मत सुनो फिर उनका संबंध भी वैसा ही रहता है। तो हमें वैसा नहीं, वी हैव टू हैव वेरी इंटीमेट रिलेशन विद द लॉर्ड। ठीक है, सो नॉन डिवोटीज को कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि पालन नहीं करना चाहते तो भगवान भी उनको शांत रहते उस समय। Although he witnessed all their activity and award them the necessary result, good or bad. तो भगवान उनकी जितनी भी गतिविधियां उनको क्या है विटनेस करते हैं, और उसके हिसाब से उनको रिजल्ट मिलता है अच्छा या बुरा। मगर भक्त के जीवन में कभी कभी भगवान खुद भी क्या कहते हैं इंटरफेयर कर जाते हैं कि मेरे भक्त के साथ कहीं कुछ बुरे। जैसे नरसिम्हा मेहता थे, इतने शुद्ध भक्त थे, उनको अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं होता था, तो भगवान स्वयं एक बार आए तो उनके बेटी की शादी करवाई, सब कुछ करवा दिया। तो मतलब स्वयं भी भगवान इंटरफेयर करते हैं अपने भक्तों के जीवन में, मगर भक्तों के जीवन में बोलते ठीक है रहने दो, जैसे इनके कार्य में से भुगत। ठीक है, उनको भी प्रयास तो करते हैं मगर सुनना नहीं चाहते तो क्या करें। The devotees are above this material goodness and badness. They are progressive on the path of transcendence. तो जो भक्त है वो भौतिक ये जो कार्य है गुणों के अधीन नहीं है, तो एक्शन रिएक्शन में नहीं होता, क्योंकि वो पूर्णतः ट्रांसेंडेंस मतलब गुणों के ऊपर है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में जो भी हम सेवा करते हैं वो गुणों के अधीन नहीं होती, प्योर डिवोशन ट्रांसेंडेंटल होती है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू रिमेन ट्रांसेंडेंटल ऑल द टाइम, तो ऑल द टाइम रिमेन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। अगर आप गुणों के अधीन नहीं रहना चाहते तो पूर्णतः भगवान की सेवा में रहिए, आप ट्रांसेंडेंटल रहेंगे। Therefore they have no desire for anything material. इसलिए भक्तों में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। The devotee also knows Shri Krishna as the original Narayana, because Lord Krishna by his plenary portion appear as Karnodakshay Vishnu, original source of material creation. और भक्त ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही नारायण भी है, क्योंकि ओरिजिनल पर्सन कौन है, भगवान कृष्ण, और उन्हीं से कर्णोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, महाविष्णु सब उन्हीं के एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, Lord also desired the association of his pure devotee, and for them only the Lord descend to the earth and enlivens them. Even भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों का संग चाहते हैं, उनके साथ लीला चाहते हैं, तो इसलिए भगवान धरती पे आते हैं और लीला करते हैं। जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिम्हदेव ने अपनी गोद पे लिया था, बड़े गुस्से में थे, तो ब्रह्मा जी आए प्रार्थना करने लगे, तो बहुत गुस्से में थे नरसिम्हदेव, सब डर गए सभी देवतागण। तो उन सब लक्ष्मी माता के पास गए, आपके पति हैं जाके देखो लक्ष्मी माता कहती है ऐसे तो मेरे कंट्रोल में आता है, आज ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं, बड़े गुस्से में है, पता चला मेरे को ही कुछ कह देना ना, मैं नहीं जाऊंगी मुझे माफ करो, इतना उग्र रूप नहीं देखा मैंने। तो कहते अच्छा। तो फिर प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे, तो ब्रह्मा जी ने नरसिम्हदेव का गुस्सा शांत करने के लिए प्रहलाद महाराज को आगे किया, और प्रहलाद महाराज जैसे आगे के एक छोटे से जैसे काफ होता है, छोटा सा पिल्ला होता है, तो नरसिम्हदेव ने उसको उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया और उसको चाटने लगे। जैसे शेर होता है वो कैसा अपना वात्सल्य भाव शो करता है, चाटता है। गाय को देखा है कभी अपने बछड़े को जब प्रेम करती है तो चाटती है, तो मतलब वो उनका वात्सल्य भाव ऐसा प्रेम शो करते हैं अपना उस प्रकार से। तो नरसिम्हदेव चाटते हैं और काफी उसको सहलाते हैं। तो वो देखते हैं नरसिम्हदेव, कुछ इच्छा उनके मन में जागृत होती है, कहते ये प्रहलाद बड़ा एंजॉय कर रहा है मेरी गोद में बैठ के, बड़ा इसको आनंद आ रहा है, मुझे भी आनंद आ रहा है, मैं भी इसको चाट रहा हूँ, मगर वो आनंद नहीं मैं महसूस कर पा रहा जो ये कर रहा है। ये क्या आनंद महसूस कर रहा है कि अपने माता पिता की गोद में बैठा है।
तो नरसिम्हदेव बोलते काश मेरे भी माता पिता, देखते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिता तो खंबा है, तो खंबा की कहाँ गोद में बैठूं। तो उनमें भी इच्छा है कि मेरे भी माता पिता हो, मैं भी ये लीला जो है माता पिता की कि मैं भी ये वात्सल्य भाव अनुभव कर सकूं। तो उनमें ये इच्छा प्रकट हुई। उसके बाद से भगवान ने देख लिया कि मैं जब भी आऊंगा तो मेरे माता पिता होंगे। तो नरसिम्हदेव के बाद जितने भी भगवान के अवतार हुए, हर लीला में भगवान के माता पिता हुए, चाहे वो राम जी हो, जब भगवान कृष्ण हो, कोई भी लीला वामन देव हो, तो उनके माता पिता रहे जी, उनकी खुद की इच्छा। देखो वो बहुत रेलिश करते हैं ऐसा, उनको खुद मजा आता है कि भक्तों के संग में आए। तो जब राम जी थे तो तब भी उनके कोई फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड मतलब गुआ तो थे उनके और बाकी भी थे, मगर वो राजा थे। अब कहते हैं ना मैत्री बराबरी में होती है, तो वैसा वो भाव नहीं देख पा रहे थे कि जैसे एक अनफॉर्मल सा रिलेशन होता है, दोस्तों का रिलेशन कैसा होता है, काफी अनफॉर्मल सा होता है ना, कि कुछ भी साथ में बैठो खाओ कुछ भी करो। मगर राम जी के पास ऐसा सुविधा नहीं था। तब उनकी इच्छा हुई थी कि मेरे भी ऐसे मित्र हो, तो सारी की सारी इच्छाएं उन्होंने कृष्ण लीला में पूरी की। गोपागन बने, उनके मित्र बने, किस तरीके से वहां लीला उन्होंने की। तो देखिए भगवान को तभी बहुत आनंद आता है अपना इस तरह का लीला करने का। So Krishna has done all the लीलास, गोपियों के साथ रास लीला की, जब क्योंकि राम जी के कई ऋषिगण थे। तो जैसे कुब्जा भी थी, भगवान सॉरी शूर्पणखा, तो भगवान के साथ आनंद करना, एंजॉय करना चाहती थी। कोई गलत नहीं है अगर कोई भगवान के प्रति रूप में चाहे, मगर भगवान का तो एक स्त्री व्रत था, वो भी लीला उन्होंने कृष्ण लीला में की। कुब्जा जो आगे सॉरी जो शूर्पणखा कुब्जा बन के आती है कंस के महल में मथुरा में, जो सैंडलवुड वो पल्प बनाती थी, हमारी कुबड़ियां कोमल माता जी बनी थी हमारी। है कोमल माता जी, याद है आपको? बनी थी कुब्जा, है कोमल यहाँ पे? हमने प्ले किया था तो Yes, तो हमारी Madhuji. कोमल माता जी बनी थी कृष्ण लीला में। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा भी होती है, वो उनको भी आनंद आता है भक्तों के साथ में, तो आते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ में संकीर्तन किया, द लॉर्ड अपीयर आउट ऑफ हिज ओन विल, तो भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। ये नहीं कि हमारे कहने अभी प्रकट हो जाओ, हमारे कहने से नहीं होंगे, अपनी इच्छा से आते हैं। ही इज नॉट फोर्स्ड बाय द कंडीशंस ऑफ मटेरियल नेचर, तो भगवान प्रकृति के हिसाब से फोर्स नहीं है। जैसे हम जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए अपने कर्मों के अनुसार फोर्स होते हैं, मतलब हमें प्रेशर होता है कि आपको अगला जन्म ये शरीर मिलेगा, क्योंकि बद्ध है ना, तो अगला जन्म लेने अपने कर्मों के अनुसार हमें लेना पड़ता है। मगर भगवान का ऐसा नहीं है, अपने कर्म नहीं है उनके, वो तो गुणों के ऊपर है। सो ही इज देयरफॉर डिस्क्राइब्ड हियर एज विभु और ऑलमाइटी, फॉर ही इज नेवर कंडीशन्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। तो भगवान कभी भी प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते, हमेशा उनसे परे होते हैं, तो इसलिए वो विभु हैं, उनको विभु भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुणों का उन पे कोई प्रभाव नहीं, वो दिव्य हैं, चाहे वो बच्चे रूप में हो या ब्राह्मण की तरह बोने ब्राह्मण हो या कोई भी अवतार वो आते हैं, तो वो क्या है, इन गुणों के प्रभाव से परे हैं, उनको एक्शन रिएक्शन नहीं है, मगर हम जीवात्माओं में है। सो इस तरीके से हमें देखना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे भगवान का बताया गया परमात्मा भी किसको गाइड करते हैं किसको नहीं, तो ये हम पे निर्भर है। और हमारा थिंकिंग विलिंग कहाँ है, जहाँ इस तरीके से भीष्म पितामह अपना पूरा चिंतन भगवान पे लगा पा रहे हैं। आप बोलेंगे माता जी वो भी तो एंड में कर रहे थे, तो हम भी एंड में कर लेंगे, हम भीष्म पितामह नहीं है। अंत में हम नहीं कर सकेंगे ऐसा अगर हमने शुरुआत से नहीं किया होगा, है ना, क्योंकि हमारे मन में कई इंप्रेशंस हैं पिछले कई जन्मों के। वो तो पहले से शुद्ध भक्त हैं, वसु थे, वो एक 8वें वसुओं में जो लीडर थे वसुओं के, वसु थे भीष्म पितामह। ठीक है, तो मतलब ही इज ऑलरेडी अ वेरी ग्रेट सोल, मगर हम कोई महान आत्मा नहीं है, हम कई जन्मों से इस भौतिक जगत में और कई इंप्रेशंस हमारे दिमाग में घूम रहे हैं, हमारे कई क्रियाकलापों के। तो हम अगर बोलें कि अंत में हम भगवान नाम माता जी हम भी कर लेंगे चिंतन, तब उस समय क्या है, जैसे भीष्म पितामह, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय है, जब अंत समय आता है तो इंसान डर के मारे, जब यमदूत देखता है ना, तो पेशाब भी बीच में करता है, यूरिन स्टूल सब कुछ बीच में ही हो रहा होता है, उसको ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा है, बिल्कुल होश नहीं होती। तो इसीलिए अगर पहले से चिंतन किया है तो बाय डिफॉल्ट निकल भी पाएगा, नहीं प्रैक्टिस किए तो भगवान का नाम भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए जैसे प्रहलाद महाराज हमें उपदेश देते हैं कि हमें बचपन से, चैतन्य महाप्रभु को प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज की कथाएं बहुत पसंद थी, क्योंकि उनके जो कथाएं हैं वो बहुत ही, तो उन्होंने कोई 113 बार तो प्रहलाद महाराज की कथा सुनी होगी। तो मतलब कई इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि प्रहलाद महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि कुमार अर्जित हो, कुमार अवस्था मतलब 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति करनी चाहिए। अब हम में से कई लोग, आई डोंट थिंक कि हम में से सारे 5 वर्ष से हैं, मुझे लगता है कोई भी नहीं है। तो मैंने खुद 19-20 में शुरू की,
तो मतलब डिले तो हो गया हमारा ऑलरेडी, पर चलो कभी ना होने से कभी तो शुरुआत हुई, तो अभी इसको सीरियसली हमें लेना है और पूर्णतः अपने कार्य कलाप ऐसे करने हैं कि भक्ति में हो, ठीक है, भगवान का चिंतन हो उसमें, तभी हम भगवान को अंत समय में याद कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत है फिर। ठीक है, तो यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए, समय थोड़ा ऊपर हो चुका है, मगर फिर भी अगर किसी के कोई प्रश्न है या कुछ आप शेयर करना चाहें, रियलाइजेशन है, या किसी का कोई कमेंट है, या आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम विराम भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा, बट आई वुड लव टू हियर फ्रॉम द डिवोटीज। तो इच्छा तो है सुनने की, अगर आप सुनाएंगे तो, हम नहीं कोई सुनाएगा तो चलो फोर्स नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। कहते हैं दैट भगवत गीता का वो श्लोक आता है, कहते हैं कि तुष्यंती च रमंती च, जो भगवान के भक्त हैं वो बहुत आनंद लेते हैं भगवान के बारे में चर्चा करने में, और उनको बड़ी उत्सुकता होती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों में उत्सुकता है कि वो अपने कुछ थॉट शेयर कर सकें या कुछ प्रश्न पूछ सकें। तुष्यंती च रमंती च, तो अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग तुष्यंती रमंती हैं, तो अगर हैं तो मैंने तो अपना पाठ कर लिया, अब आपकी बारी। हरे कृष्णा। ये सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, लाइक मैं एक रियलाइजेशन शेयर करना चाहूंगी जो कि मैंने सुना था इन लेक्चर में। इट्स नॉट अबाउट मी बट वन एक मैंने लेक्चर में सुना था कि माता जी मुझे राजधानी की तरह मत चलिए, थोड़ा धीरे धीरे। एक सेकंड में फैन ऑफ कर लेती हूँ। ओके, यू आर शेयरिंग अ रियलाइजेशन, व्हाट्स योर रियलाइजेशन? इट्स नॉट माय रियलाइजेशन माता जी, मतलब मैंने एक लेक्चर में हियर किया था, लाइक एक प्रभु जी है जो मतलब वो एक कंपनी में काम करते हैं, लाइक प्राइवेट कंपनी में, बट उनका लाइक कंपनी में काम करते हैं, उनको लाइक 25 डेज या 30 डेज ऐसे हॉलीडेज रहते हैं फॉर ईयरली। सो उनका 25-26 हॉलीडेज थे। तो वो एवरी एकादशी ऑन 15 डेज के बाद जो एकादशी आती है, एवरी 15 डेज के बाद वो हॉलीडे लेते थे ऑन एकादशी डे, और हॉलीडे लेते थे फ्रॉम देन मॉर्निंग सनराइज टू सनसेट तक। मतलब वो एक तरह 4 ही यूज्ड टू, मतलब वो 4 नियम का पालन करते थे। मतलब फर्स्ट नियम था वो मतलब अपनी ऑस्टेरिटी और सेल्फ ये करते थे डेवलप। तो उनका फर्स्ट था कि वो चुप रहते थे, मतलब किसी से बात नहीं करते थे ऑन द डे ऑफ एकादशी। एंड सेकेंड ही यूज्ड टू चैंट 108 राउंड्स ऑन ईच एकादशी। एंड थर्डली वो निर्जला रहते थे। एंड फोर्थली मैंने क्या सुना था, फोर्थली समथिंग, हाँ फोर्थली ही यूज्ड टू डू लाइक 32 राउंड्स ईच डे। और एकादशी आती है तब वो 108 करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम एकादशी जो भी डे रहते हैं वो 32 राउंड्स करते थे। तो उनके लाइक एकादशी के डे वो लाइक 108 राउंड्स करके निर्जला रह के, बट नेक्स्ट डे भी लाइक मतलब निर्जला रहना पड़ता है ना प्राणायाम टाइम, तो उनके प्लस एक्स्ट्रा 32 राउंड्स होते, मतलब वो करते थे कि वो नेक्स्ट द्वादशी के 32 राउंड्स करते थे अपार्ट फ्रॉम 108। सो दैट टू लाइक वो निर्जला रह के उतना अपना सेल्फ फर्स्ट, मतलब आई मीन टू से हियर लाइक हाँ देयर आर सो मेनी डिवोटीज, लाइक कंपटीशन जैसे मटेरियल वर्ल्ड में चलता है ना कॉलेज में, लाइक तू आगे जा रहा है मेरे स्टडी में, तो यहाँ पे डिवोटीज में भी बहुत कंपटीशन है, लाइक हाउ आई शुड सर्व लाइक गोपीज, मुझे कृष्णा देखे या तुझे कृष्णा देखे। So everyone is competition in devotional life also. So he was like very dedicated on. So उसने अपने 25 days of holidays के वो every month 2 holidays लेता। So ऐसे करके उसने 1 year में 25, and बीच में अगर कुछ हुआ तो देखो जो सीरियस है वो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी करने के लिए तैयार है। Yes, they are ready to take up extra austerity because their goal is Krishna and they wanted to attain Krishna as soon as possible. यस तो मैं आफ्टर हियरिंग दिस लाइक आई वाज लाइक शॉक। वो बता रहे थे लाइक मैंने वो नहीं बता रहे थे, मतलब सब उनके जो क्लोज के डिवोटीज रहते हैं ना नियर बाय, तो वो बता रहे थे बिकॉज एंड ही इज लाइक वेरी मच हम्बल एंड उनको मतलब वो प्योर स्टेट आ ही जाती है माता जी जिसे हम करते हैं ना, इट ऑटोमेटिकली कम्स ओनली दैट, देख के पता चलता है कि कौन कितना। एंड आई वाज लाइक अरे बाबा, एंड लाइक इतने आगे तो हम तो यहाँ लाइक नथिंग बट स्टिल वी हैव टू गो फॉरवर्ड। तो so आपका क्या रियलाइजेशन था इससे? I got totally sure. I thought like I am nothing in front of anything. That's very good. We all are nothing in front of any one of us.
But now what नहीं you तो took मुझे from that आपसे याद आया realization? माता जी। आपने क्या No, प्रेरणा but ली उनसे? yes, it was like I thought Did like you I also have to took be some like vow? this. Yes, माता जी मैंने start किया, but I will not share until I succeed it. Why you are Otherwise, it not will sure? not go. No, I mean to say I will not share that कि मैंने जो लिया है, because otherwise it 15 days करूँगी फिर नहीं होगा, so I don't want to share it until it gets succeeds Okay, after you are some not. years. Okay, you are not sharing. Okay. But the thing is, Yeah. that's very nice that you shared about one Prabhu. Yeah. देखिए कंपटीशन जैसे माता जी कह रहे हैं कि देखिए हर कोई अब भक्ति करना है तो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी कोई ना कोई लेता है अपनी इच्छा से, प्रभुपाद ने तो बहुत सिंपल हमारे लिए रखा है. सो दिस इज वेरी गुड. बहुत अच्छा है कि अगर हम भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकें. एक्स्ट्रा करने के लिए देखो एग्जाम है, जैसे हमारा ये इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं ऑल इंडिया, ये मेडिकल एग्जाम्स है, तो हर कोई मेहनत करता है. ठीक है, हमारे लिए भी डेथ एग्जाम तो सबके लिए कॉमन है ना, चाहे सन्यासी है, वानप्रस्थी है, गृहस्थी है, ब्रह्मचारी है या कोई भी है, एग्जाम तो एक ही है. पास तो सबको करना है ना. तो पास करने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, तो आप अगर बाकियों को देखिए और खुद को कंपेयर करिए तो बहुत डिफरेंस है. मगर एक चीज ध्यान रखिए कि भक्ति में अब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है. चाहे आप केवल 4 नियम और 16 माला ही करो, अगर आपकी अब्जॉर्प्शन अच्छी है तो वही आपको भगवत धाम लेके जाएगी. ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा ऑस्टेरिटी इट्स वेरी गुड, वन इज डूइंग कि अपना समय अच्छे से यूज करें भगवान की सेवा में, बहुत अच्छा बात है ये. बट आई एम सेइंग इवन इफ यू जस्ट चैंट 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल विद फुल अब्जॉर्प्शन, back to Godhead is guaranteed. And if you, including one more point, following the instructions of one Guru. गुरु की आज्ञा, 16 माला, 4 नियम, अगर आप इतना भी करते हो, श्योर यू आर गोइंग बैक टू गॉडेड. तो अपने आप को बेसिक चीज के साथ भी बांध लीजिए, इतना भी आप पक्के हो जाओ, भगवत धाम गारंटी है. ठीक है, एडिंग एडिशनल थिंग इट्स ऑल राइट, बट इफ यू कैन नॉट फॉलो द बेसिक, व्हाट अबाउट दैट? तो बेसिक में अगर आप कंट्रोल नहीं है कि 4 नियम, या जैसा हमारा है 4 नियम, 16 माला और गुरु की आज्ञा, first is that, then additional things are there. Okay, so that is there. Okay, अनंतेश्वर प्रभु जी, आपने हाथ खड़ा किया था, तो बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं. हाँ माता जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स सीक्वेंस वाइज ना माता जी. सो या एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा कि इमीडिएटली एट द एंड मोमेंट वी कैन नॉट रिमेम्बर कृष्णा सो इंस्टेंटली, क्योंकि हम लोग कंडीशनड और पता नहीं कितने जन्मों का मतलब हम लोग साथ में लेके आए हैं. सो इम्प्रेशंस ना, उसका फिर इनर्शिया. सो यू आर राइट माता जी, एंड यू कोटेड प्रहलाद महाराज एग्जांपल के छोटे से उम्र से ही हम लोग को शुरू कर देना चाहिए. वेल आई गेस मोस्टली सारे इस ग्रुप में हम लोग 30 के आसपास तो हो गए अभी, तो आई थिंक वी आर इन मिड वे. तो अभी आधा जो बच गया उसमें मैं मतलब एटलीस्ट मैं तो सीरियसली अभी लूंगा कि ठीक से प्रोसेस फॉलो करूँ, सो एटलीस्ट एंड मोमेंट पे कृष्णा को याद कर सकूं. So yeah, and thank you Supriya Mata ji, wonderful realization for Prabhu ji ka. And like Mata ji said कि अगर foundation strong है, so because we are seeing nowadays in Mumbai ना, यहाँ पर cyclone आया है, so जिन buildings का foundation strong नहीं था वो गिर चुके already. So some places हो गया disaster इधर, लेकिन जिनका foundation strong है उनको कुछ भी नहीं हुआ, cyclone कितना भी strong हो. So माता जी ने कहा कि 16 rounds and 4 regulative principles if done with absorption, complete day na, so that is also perfect, more than enough. Yeah, I will try to do that today and henceforth. Thank you. Yeah, Ananteshwar Prabhuji, first of all I'll say thank you for speaking up. Don't say the word try, because try is lie. In India it says, people many times say will try, don't say try. We should say I must do it. I must do it. That's the spirit. So we must do it. Never say try. Try is lie. जब ये बोलते हैं try करेंगे, तो वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं. Try नहीं करना है. We should say to ourselves, I must do it. I will do it. ठीक है? So we should do it. So हमें करना है. ठीक है? So that, like that we should say, I want to become pure devotee and I want to become now. मुझे शुद्ध भक्त बनना है और मुझे अभी बनना है. यानी I'll try to become pure devotee. Try मतलब I am giving an extension. हाँ, कभी करेंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है. So thank you so much for sharing that कि जिन बिल्डिंग्स की फाउंडेशन नहीं थी, अब देखिए 12 मरले का बिल्डिंग है या 100 मरले का बिल्डिंग है, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं, कितना ऊपर चढ़ा लिया, गिरा के नहीं.
तो फाउंडेशन स्ट्रांग है हमारा, दैट्स गुड। जैसे मैंने बोला 16 माला 4 नियम एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, बिकॉज इट सेज द परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन स्पिरिचुअल मास्टर। कि अगर हमारे गुरुजन हमसे प्रसन्न है तो उनकी सेटिस्फेक्शन है, तो दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, वो हमारी परफेक्शन। ठीक है, ये तारा माता जी कहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद आने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं भक्ति में अभी नई हूँ, कुछ टाइम से ही हूँ, तो मैं एक बार ये चाह रही थी कि जो 4 नियम है ना, एक बार प्लीज रिवाइज कर देंगे। जी माता जी, बहुत सही सवाल पूछा आपने, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। अक्षय 1 सेकेंड, लेट मी आंसर तारा माता जी। हमारे जो 4 नियम है वो है नो मीट ईटिंग, मतलब कोई माता जी मांसाहार नहीं खाना हमें, ठीक है, मीट मच्छी नहीं खाना। दूसरा नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। मदिरापान। तीसरा नो इंटॉक्सिकेशन, चाय कॉफी भी नहीं पीनी है माता जी, ठीक है। कई कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में आप अगर पीना भी चाहें तो लिम्का या फेंटा ले सकते हैं, मरिंडा, ब्लैक वाली नहीं, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, ड्यू में भी अल्कोहल कंटेंट होता है, निकोटीन होता है, सॉरी नहीं कैफाइन होता है, जो भी होता है, मगर नहीं ठीक होता, ठीक है। और चौथा है नो इलिसिट सेक्स, मतलब प्राय संग नहीं करना, या माताओं के लिए प्राय क्या बोलते हैं, मतलब बाहर एक्सटर्नल किसी मैन के साथ अफेयर नहीं रखना। और इसमें ये भी चीज मैं बता दूं कि भक्त जो गृहस्थी में भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास लाइसेंस है अपनी वाइफ को एंजॉय करने का, नहीं। प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है गृह मेदी और गृहस्थ का अंतर, वो ये है, पहली बात तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रखने नहीं है हमें, ठीक है। इसका मतलब ये कोई लाइसेंस नहीं कि अपनी पत्नी के साथ आप उसको प्रोस्टिट्यूट बना दो, नो। गृहस्थ में भी अगर प्रभुपाद ने क्लियरली मेंशन किया है 7वें अध्याय का, अगर आप 11वां श्लोक पढ़ें, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कामोस्मि अहम, कि मैं काम, मतलब सेक्स लाइफ इज आई एम, दैट इज अकॉर्डिंग टू द कि जो सेक्स लाइफ है वो सिर्फ बच्चों की उत्पत्ति के लिए, अगर आप संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तब आप यूनियन करिए, अदरवाइज कोई ऐसा फिजिकल रिलेशन, मतलब यूनियन नहीं रहता है स्त्री पुरुष में, गृहस्थ में भी, क्योंकि नियम पालन है, गर्भधान संस्कार हम पालन करते हैं, तो वो भी महीने में एक बार, जब स्त्री का जैसे हमारे मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं, तो उसके 5 के 6 दिन बाद जो मेल है या फीमेल है 50 माला हरिनाम की करते हैं। ये प्रिंसिपल प्रभुपाद ने दिया, मैं बहुत छोटा सा दिया है, 50 माला दोनों को करना है, और जैसे वैष्णवों की कृपा लेके तब वो यूनियन के लिए कर सकते हैं, ताकि एक अच्छी जीवात्मा गर्भ में आए और कृष्णा कॉन्शियस हो। तो ये नियम भी भक्तों को नहीं पता होता, तो ये नहीं है कि बोला जाता है कि प्राय स्त्री संग नहीं, अपनी वाले के साथ जो मर्जी करो, तो यू आर मेकिंग योर वाइफ प्रॉस्टिट्यूट, तो ऐसा नहीं है। ये गृहस्थ का भी नियम है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 नियम है माता जी। पहले तो प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, नो मीट ईटिंग, ठीक है, नो इंटॉक्सिकेशन, शराब चाय कॉफी नहीं पीनी है, कोल्ड ड्रिंक भी मैंने आपको बोला कि जैसे कई हैं जिनमें कैफाइन होते हैं, निकोटीन, तो प्रयास करें ना ही पिए, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आप लाइम सोडा ले सकते हैं, या आप वही जो नींबू पानी वगैरह, ठीक है। दूसरा जैसे जुआ नहीं खेलना, शर्त भी नहीं लगाना, सट्टेबाजी नहीं करना, तो ये इसमें आते हैं, ठीक है। और चौथा जैसे इलिसिट सेक्स वाला, कि प्राय स्त्री संग या प्राय मर्द संग नहीं करना है हमको, तो वो हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए उस चीज। और जैसे मैंने बोला गृहस्थ का एक पालन होता है नियम, कि आपको बच्चे चाहिए तभी यूनियन होता है, कितने भी बच्चे चाहिए चलेगा, अगर गर्भधान संस्कार को पालन करते हुए करिए, ठीक है, देन इट्स ऑल फाइन, इट्स अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल, वो धर्म के अनुसार है, नहीं तो वो भी आप नियम पालन तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 नियम है, इसके बाद डिटेल तो बहुत ज्यादा आ जाती है, तो यही 4 नियम है बेसिक, ठीक है माता जी। इनमें कोई आपको डाउट है? नहीं कोई डाउट नहीं है, तो मैं फॉलो कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा अच्छा समझ रही हूँ कि चलो ठीक है, कुछ होना चाहिए, इधर भक्त लोग भी पालन नहीं कर पाते कई बार। माता जी एक ऑब्जर्वेशन का और बोला, ऑब्जर्व करना होना चाहिए। हाँ जी, वो क्या था उसका, और क्लियर कर देंगे प्लीज? ऑब्जर्वेशन, अब्जॉर्प्शन हाँ, ऑब्जर्प्शन। हाँ, जैसे माता जी स्पंज होती है ना, स्पंज आपने देखी होगी, स्पंज देखी है आपने, उसको पानी में डालोगे तो पूरा पानी के साथ भर जाती है, हाँ जी, है ना। तो ऑब्जॉर्प्शन उसी तरीके से हमें ऑब्जॉर्ब करना है। ऑब्जॉर्ब मतलब जब हम जब करते हैं तो मैकेनिकल मुख से मुंह को नहीं हिलाना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण, मतलब आप उसमें गहराई से जाइए, एक एक शब्द का उच्चारण सही से कानों में जाना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसको सुनना चाहिए, ठीक है। कोई भी सेवा कर रहे हैं तो पूरा मेडिटेशन के साथ करना, चाहे भोगी बना रहे हैं तो ध्यान पूरा कि भगवान के लिए बना रहे, चिंतन वहां होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन,
कि अगर आप लेक्चर भी सुन रहे हो तो पूरे ध्यान पूर्वक अटेंशन पे करिए। अगर आप रीडिंग भी करते हैं, पढ़ाई भी, कुछ किताब पढ़ते प्रभात, तो ध्यान पूर्वक उसको पढ़िए, उस मैसेज को लेने का प्रयास करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास। पहली बात तो ये कि सिर्फ थियोरेटिकली सुनना या पढ़ना, बातें करने से कुछ नहीं होता। एक्शन स्पीक मोर लाउडर देन दी वर्ड्स। हमारे जो एक्शन हैं वो ज्यादा तेज होते हैं। ठीक है, तो कभी जब भी मुझे कोई भक्त अपनी रियलाइजेशन सुनाता है तो मैं बोलती हूँ आपने क्या सीखा, इसलिए मैं पूछती हूँ क्योंकि आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें। क्योंकि हम बोलते तो बहुत कुछ है, सीखते तो बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं, वो बोलना चाहिए हमको, क्योंकि बोलने से भी कहीं ना कहीं मन में तो आता है कि ऐसा करना है। तो तभी मैं पूछती हूँ कि आप क्या कर रहे हो उसमें, तो वो हमें एक्शन देखने हैं उसमें। ठीक है, आए बात समझ में माता जी? जी माता जी। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं बस, थैंक यू माता जी, ये अच्छे से क्लियर हो गया। गो अहेड। वेयर इज अक्षय? हाँ जी अक्षय प्रभु बोलिए। जी वो आज के जो उसमें था, टेक्स्ट में था, उसमें से वो एक चीज याद आ गई, मतलब याद नहीं, मतलब पहली बार ऐसा लगा मैंने सुना कि भगवान की भी इच्छा ही होती है, Don't मतलब make noise, huh? Until you want to say something, because the phone is on speaker. Yes, actually. माता जी एक वो क्या बोलते हैं कि एक नई चीज पता चली एक्चुअली कि भगवानों की भी इच्छा होती है, मतलब भगवान की भी इच्छा होती है। मतलब मुझे पहली बार पता चला कि एक्चुअली नरसिंह देव की भी वो इच्छा थी कि उन्हें भी माता पिता वाला वो चाहिए। मतलब कि मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि भगवान की भी इच्छा हो सकती है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा कि एटलीस्ट उनकी इच्छा की वजह से हमें भी कुछ रिलीज करने का मौका मिलता है, नहीं तो हम ऐसे ही पड़े रहते। No, it's not desire. Actually, there is one book by Gaur Govind Maharaj I'm reading these days. These days तो नहीं, मतलब जब भी मेरा हो पाता है, समय निकल पाता है, मैं पढ़ती हूँ उसको। That is an embarkment of separation. ये किताब है, उसमें जो पहला चैप्टर था वो इसी से रिलेटेड था कि the greed for desire, मतलब ग्रीड ऑफ डिजायर, ये भगवान में भी ऐसी ग्रीड थी, इच्छाएं थी ऐसी। तो वो कई उसमें कई उदाहरण बताए गए, कई लीलाएं बताई गई कि भगवान को क्या इच्छा हुई। तो उसमें काफी अच्छे से गौर गोविंद महाराज जी ने दैट लॉर्ड हैज द डिजायर एंड इवन ही वांट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटीज। वो भगवान की सेवा करना चाहता, बट मुक्त की सेवा करने के लिए बहुत आतुर होता भगवान। तो ये भगवान की खुद की लीला है, क्योंकि देखिए जो सेवा लेता है उससे ज्यादा एंजॉय वो करता है जो सेवा करता है। जैसे राधा रानी भगवान की सेवा करती है, वो ज्यादा एंजॉय करती थी। भगवान कहते भोक्तारम जगतप्सम सर्वलोकम महेश्वरम, भाई मैं सबका मालिक हूँ, मेरे को एंजॉय करना चाहिए, ये मुझसे ज्यादा एंजॉय कैसे कर रही है। तो उनको वो इच्छा आ गई, जलन हो गई, ऐसे कैसे हो रहा है। तो तभी भगवान ने बोला कि मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि इसमें मजा क्या आता है। तो दैट्स हाउ ही केम एज एन गौरांग महाप्रभु, टेकिंग द कॉम्प्लेक्शन ऑफ राधा रानी। गौरांगी जिनको कहा जाता है गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, he came in a भाव of राधा रानी to relish कि वो क्या भक्त बन के क्या सेवा लेना चाहते थे, वो भी भगवान की इच्छा थी। like that he wanted to relish, like that इस प्रकार से भगवान की कई लीलाएं होती हैं। ठीक है, फाइन अक्षय? यस माता जी, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा है कि जिसकी सेवा होती है उससे ज्यादा जो सेवा करता है वो ही रिलीज करता है। सही, जिसकी सेवा होती है उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यस, तभी तो भगवान कहते हैं ऋषिकेश सेवनम, कि आई एम द मास्टर ऑफ सेंसेस, यू सर्व मी। मगर हम क्या बोलते हैं, नहीं मेरी इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाए पहले, तो उसमें हमें कष्ट होता है। फिर भगवान की सेवा करेंगे तो बड़े आनंद में रहेंगे, बहुत मजे आते हैं। मगर उसके लिए कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, तो करके तो देखें पहले। ठीक है, जब तक खाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा कि पुडिंग में क्या है। तो उसी प्रकार से ठीक है। ये सुप्रिया माता जी, आप दोबारा कुछ कहना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम। नहीं माता जी, आई वांटेड टू आस्क यू, आपका जो कौन सा बुक रीड कर रहे हैं, गोविंद महाराज का जो इच्छा लाइक कृष्णा वंश, बुक का नेम क्या है? द एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन। एम्बार्कमेंट ऑफ सेपरेशन, ओके। वो किताब ऑनलाइन नहीं है माता जी, उसका हिंदी एडिशन है। हाँ ओके, अच्छा ऑनलाइन नहीं मिलती? नहीं, and even if one want to read, but I recommend first to read Prabhupada books, क्योंकि मैं भी पहले अपनी नॉर्मल रीडिंग करती हूँ, then I go to the other books, not like that way, because हम उस चीज को फिर समझ नहीं पाएंगे ज्यादा अच्छे। इसीलिए हमें क्या है, पहले प्रभुपाद की किताबें पढ़नी है, फिर बाकी किताबें।
Embarkments of कौन सा था वो? सेपरेशन. Separation. Okay. Yes. Embarkment of separation. Yes, Astha is here. Most welcome. आप रह गए थे, आपके बिना तो खत्म नहीं हो सकती भागवतम. I have one question, Hare Krishna. हरे कृष्णा. Yes, Mataji. As you were saying कि नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज उनको मतलब नरसिंहदेव जब Go प्रहलाद little महाराज slow को चाट रहे थे and loud. इतनी तेज तेज बोलोगे वो मेरे निकल जाता है. माताजी आना स्लो मैं कह लर्नर. रही थी कि Yes. मैं कह रही थी कि आप जैसे बोल रहे थे कि नरसिंहदेव अपना वात्सल्य भाव मतलब प्रकट कर रहे थे और प्रहलाद महाराज कितना रैलिश कर रहे थे तब उससे उनको डिजायर हुई. तो मतलब फिर उसके बाद के जो इनकारनेशन हुए वो मतलब कृष्णा ने मतलब With the parents he came. माता जी. हाँ माता जी, ये सारे इनकारनेशन तो इटर्नल है. तो मतलब Yes. इसका मतलब है कि वो तो नरसिंहदेव से पहले भी कृष्णा के पास चल रहे थे. अभी भी चल रहे हैं. हाँ चल ही रहे हैं ना, वही तो बता रहे इटर्नल है. तो फिर नरसिंहदेव की डिजायर कैसे हुई? और एक और उसी के साथ क्वेश्चन आ रहा था कि चलो ऐसी डिजायर होती भी है तो मान लो, लेकिन नरसिंहदेव से पहले तो कपिल देव आए थे, है ना. क्या लॉर्ड कह कपिल रहे हो? आए थे, मदर अगर देवहूति डिजायर है. होती भी है तो मतलब ऐसी डिजायर नरसिंहदेव को आई भी तो, लेकिन उससे पहले भी तो मदर देवहूति और कर्दम मुनि थे. हाँ कपिल कपिल देव आए. मुनि से. हाँ तो फिर ये डिजायर मुझे समझ नहीं आई फिर नरसिंहदेव नरसिम्हा की. देव माता जी बहुत पहले आए थे. ये प्रहलाद महाराज का ही टाइम नहीं है, उससे पहले भी आ चुके हैं. ठीक है, जो भागवत में वर्णन आता है. जैसे वरा देवी 2 बार आए थे, एक बहुत पहले आए थे. ठीक है, और ये दूसरी बार जब धरती को उठाना था तो ये एक इनकारनेशन था. तो जैसे ये लीलाएं पहले देखिए, अभी तो सारी लीलाएं चल रही हैं. ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता. वहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा नहीं है. वहाँ हर चीज प्रेजेंट में ही हो रही होती है. ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे हमारा कुछ भूतकाल है, भविष्य काल है, तो हमारा ऐसा है, मगर वहां पे ऐसा नहीं है. हर चीज नित्य है, ट्रांसेंडेंटल है. तो अभी भी किसी लोक में प्रहलाद महाराज की लीला चल रही होगी, कहीं पे राम जी का चल रहा होगा. तो लीलाएं ये चलती जा रही हैं. ठीक है, मगर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इनका आया है कि देखिए, एक ऑर्डर भी तो आया ना कि पहले ये लीला हुई, फिर उसके बाद दूसरी हुई. तो उस तरीके से देखा जाए तो ऐसा ऑर्डर भी आया. ठीक है, मगर पहले कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, उसके बाद से ऐसा चलता गया. और मोर ओवर कि भगवान में ऐसी इच्छा क्यों आई, तो ये तो अच्छी इच्छा ही है ना. अब भगवान जाने, और मेरे को क्या पता, मुझे पूछ के तो भगवान ने इच्छा की नहीं, उनकी इच्छा है. भगवान है, वो है ना, मेरे अंडर थोड़ी ना है. मैं उनकी कोई काउंसलर मेंटर थोड़ी ना कि बोले कि तुम्हें इच्छा आई कैसे. आई एम नॉट द अथॉरिटी, आई एम नॉट द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड. एक्चुअली हम भी नहीं कि हम कैसे क्वेश्चन कर दें. हाँ यस, एक्चुअली हम भी इतना ऑथराइज नहीं कि हम क्वेश्चन कर दें कि भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों की. वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं. हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले उनकी वो लीला तो पे. उनकी इच्छा है, वो कुछ भी करें. इसमें हम कौन होते हैं उनको डाउट करने वाले या पूछने वाले. आपने ऐसी इच्छा की तो क्यों क्यों है, ये कौन सी नई इच्छा पैदा कर दी आपने. नहीं मतलब इच्छा तो की, लेकिन मेरा क्वेश्चन अजीब ड्रामा है आया था आपके. रोज रोज आ जाते हो अलग अलग रूप में, अलग अलग नई नई इच्छाएं पैदा कर लेते हो. बड़े अच्छे हो आप. ऐसा बोलते हैं हम. भगवान है, इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्लेजर एंड ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग. तो इट्स हिज ओन विल बाय व्हाट ही वांट टू कम. कहते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रीजंस, तो हर चीज के इंटरनल और एक्सटर्नल रीजंस होते हैं. तो भगवान की इच्छा है वो. ठीक है, उनका खुद का है कि वो क्या कब क्या करना चाहते हैं. वो तो उनकी एक लीला का ही हिस्सा होता है. अब हम है तो हम एंजॉय करें उसको. हम क्यों डाउट करें, ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, क्यों माता पिता के साथ आए हो, क्यों ऐसा, फिर पहले राम जी क्यों बने, फिर ऐसा क्यों कर दिया आपने. वी आर नो वन टू क्वेश्चन अबाउट इट. वी जस्ट कोई पोजीशन ही नहीं है टू रियलिश the leelas and pastimes of the Lord. Understood? Yes. Okay. Yes, माता जी. और माता जी एक और point. हाँ. Yes, please go ahead. That point of appetite, you know, वो appetite होनी चाहिए. Appetite नहीं है तो भूख भी नहीं लगेगी, खाना नहीं खा पाओगे. Yes. Appetite can be compared as lolium. Yes. Greed. Yes. So yes. So वही है
कांस्टेंट लॉलियम कैसे होता है, फिर कैसे डेवलप किया जाए कांस्टेंट लॉलियम? वो हमेशा ही रहे कि हमेशा हमें भूखो कि we want more Krishna, we want more Krishna. How to develop that? Asa, I didn't understood your question. Please be little loud. मैं कह रही हूँ कि वो जो लॉलियम या एपिटाइट है उस मतलब वो उसको कैसे हमेशा रखा जाए, मतलब हमेशा ये डिजायर हो कि आई वांट मोर कृष्णा, मुझे ज्यादा चाहिए और कृष्णा चाहिए. हाउ टू डेवलप, फिर ऐसी How to डिजायर develop कैसे that डेवलप thing? होगी? वो लॉलियम कैसे बढ़ाना है हमें? वो इस तरीके से बढ़ाना है, अगर आप में नहीं है. देखिए, एक बिजनेसमैन भी होता है तो वो सोचता है कि मेरा प्रॉफिट बढ़े, तो हमें भी देखना है हमारी भक्ति बढ़े, तो उसके लिए वो लॉलियम बढ़ाने के लिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना है. जैसे सुप्रिया माता जी ने एक प्रभु जी का उदाहरण दिया कि वो एकादशी में छुट्टी लेके ऐसे पूरा 108 माला करते हैं या अपना कुछ एक वाव लेते हैं. तो वी शुड ट्राई टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम. ठीक है, हमें ऐसे भक्तों का संग करना है जो भक्ति में और ज्यादा सीरियस है. सीरियस भक्तों का संग कीजिए. एंड कोई ना जो चीज आप में नहीं है तो ऐसे भक्त का संग करो जिसमें हो और उससे आप लेने की प्रयास करो, क्योंकि भक्ति में हर चीज कंटेजियस है. अगर आप में फेथ नहीं है तो ऐसे भक्त का संग करो जिसका फेथ बहुत स्ट्रांग है, अपने आप आ जाएगा. हाँ, और जिसमें आप जैसे किसी को जैसे what I say, मतलब in whatever way try to associate with such devotees or try to learn from them, तब वो आप में भी ग्रीड आएगा. ठीक है, हमें किसी में भी ग्रीड नहीं है फिलहाल, तो किसी में भी नहीं है कि हमें आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, मगर भक्तों के पुश से हमें वो आता है. आता है कि नहीं आता? अब जैसे मुझ में भी इच्छा थी कि मुझे इतनी माला करनी है, मगर की नहीं कभी. ये इच्छा बड़े टाइम से थी, मतलब कितने टाइम से थी मेरे में कि मुझे करनी है, इतनी माला करनी है. तो ऑफिस में भी खैर मेरे पास टाइम भी नहीं होता था, बट जैसे भी हुआ तो देखो भक्त का जब पुश मिला अपने आप हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? हमें कई बार इच्छाएं होती है मगर उतना कर नहीं पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हमें वैसा एनकरेजमेंट या सपोर्ट नहीं होता, तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना जहां से हमें मिले. गॉट द पॉइंट आस्था? The only remedy is the association of the devotees, those who are very serious on this path. Okay? Yes. So try to find such devotee. If you don't find it, then pray to Krishna. What was the prayer? प्रचेतस की प्रेयर आती है भागवतम में 4th अध्याय के, मैं इसको याद करती हूँ आजकल. I do recite this prayer. 4:30-33 4th अध्याय का 4th canto 30th chapter 33 verse number. तो अगर आप उसको पढ़ो तो इट्स ए वेरी इंस्पिरेशनल. उसमें क्या बोलते हैं प्रचेतस, ऐसी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से? कहते हैं कि टाइम फिर अप होने वाला. पूजा माता जी का और भी सवाल था, आप लोग फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए. ये Zoom अनलिमिटेड नहीं है. डू कम अगेन देन आई विल रीड द प्रेयर. अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि मुझे और भी सेवाएं आज बहुत हैं, तो प्लीज कम अगेन सो दैट आई विल रीड दिस प्रेयर एंड आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ पूजा माता जी आल्सो. हरे कृष्णा. प्लीज कम अगेन, दोबारा ज्वाइन कीजिए. तो आज माता जी मैं क्या बता रही थी, कौन सी प्रेयर थी? प्रचेतस क्या प्रेयर करते हैं? कहते हैं, डियर लॉर्ड, एज लॉन्ग एज वी हैव टू रिमेन विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड ड्यू टू आवर मटीरियल कंटेमिनेशन. क्या कहते हैं कि माय डियर लॉर्ड, एज लॉन्ग एज वी हैव टू रिमेन विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, लेट मी रीड अगेन. Dear Lord, as long as we have to remain within this material world due to our material contamination and wander from one type of body to another and from one planet to another, we pray that we may associate with those who are engaged in discussing your pastimes. We pray for this benediction life after life and in different bodily forms on different planets. प्रचेतस क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या प्रेयर कर रहे हैं कि हम जब तक इस भौतिक शरीर में हैं तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएंगे, एक लोक से दूसरे में जाएंगे, मगर हमें इतना बेनिडिक्शन हम पे करो, इतनी हमें कृपा करो कि हम हमेशा ऐसे भक्तों का संग करें जो हमेशा आपकी लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, कहते हैं इवन अ मोमेंट एसोसिएशन विद अ प्योर डिवोटी कैन बी कंपेयर्ड टू बीइंग अ ट्रांसफर टू हेवनली प्लैनेट्स और इवन मर्जिंग इनटू द ब्रह्मन इफल्जेंट इन कंप्लीट लिबरेशन. फॉर लिविंग एंटिटी हु आर डिस्टाइन्ड टू गिव अप द बॉडी एंड डाई, एसोसिएशन विद प्योर डिवोटी इज द हाईएस्ट परफेक्शन. ये दोनों वर्ड्स मुझे बहुत पसंद है. These are 4:30, 34 and 33.
अंडरस्टूड आस्था? तो वी हैव टू डिजायर, एटलीस्ट एक इच्छा करो कि भक्त संग मिले, बाकी सारी इच्छाएं ग्रीड ब्रीड सब कुछ आ जाएगा आप में। यस माता जी। बाकी सब 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 के कहते हैं, सब आइटम्स है ना, वो पीछे पीछे फॉलो करेंगे प्रिंसेस की तरह। कहते हैं वो थ्री इडियट का क्या डायलॉग था, व्हाट वाज दैट, कि सक्सेस झक मार के, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट सेइंग। खैर जो भी है, कहने का इच्छा ये, कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य कि अगर आप भक्तों के पीछे भागोगे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो कंगाल हूँ कृष्ण कृष्ण बोल रही हूँ, आपके पाछे दैतावा पाछे पाछे, मैं तो आपके पीछे भाग रहा हूँ। तो उनके पीछे भागोगे, बाकी सारी चीजें आपके पीछे भागेंगी। ठीक है, आई समझ में आस्था? सो यस, जस्ट डिजायर फॉर द प्योर संगा, शुद्ध भक्त का संग करोगे सब कुछ मिलेगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज आवर वॉल्यूम। नरोत्तम दास ठाकुर भी तो कहते हैं, रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तम दास। रामानंद राय क्या कहते हैं, द सबसे पेनफुल सिचुएशन किसी भक्त के लिए क्या है, कि जब उसके पास भक्त संग ना हो, क्योंकि वो है तो फिर सब yes, है ना। and I just remember this quote, like sadhu sang sarva साधु संग sastra, साधु संग love matra sadhu sang, लव मात्र साधु संग, love matra sadhu sang sarva siddhi hoy. Yes, ठीक है, I got my लव answer. मात्र Thank संग you, भी Hare Krishna. हमारी परफेक्शन अटेन करवा सकता है, मगर मक्खी संग नहीं लेना। कैसा संग लेना है? हाँ, सारग्रही, मधुमक्खी संग। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ कहना है? आज बहुत लंबा चला गया सेशन। पूजा माता जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी हरे कृष्णा माता जी, एक क्वेश्चन था फर्स्ट। धीरे धीरे हेलो हरे कृष्णा। जी माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर, जी माता जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माता जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर, इट्स रियली सो मोटिवेटिंग। एंड क्वेश्चन था माता जी, जैसे आपने बताया था ना, लाइक जब हम जपा करते हैं तो हमें ध्यान, मतलब अगर हमारा नहीं भी दिल कर रहा तो हमें ध्यान से जपा करना चाहिए, राइट? कि मतलब अगर फिर भी हम कर रहे तो कृष्णा खुश होते हैं। yes. तो जी, तो फिर भक्ति के लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लाइक कि जैसे अभी आज आपने बताया कि फीलिंग, जैसे इन्वेस्ट ऑल पावर ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर शुद्ध, मतलब अगर हमें भक्ति में प्रोग्रेस करना है, या फिर वो जो मतलब हमारा डेडिकेशन, तो विच इज मोर इम्पोर्टेंट, या हम क्या उसके लिए क्या कर सकते हैं? लाइक अभी तो वो फीलिंग या विलिंग अभी तो है नहीं हमारे में इतनी की, लाइक जो हम शुद्ध भक्ति अटेन कर सके। तो अभी तो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? धैर्यात् निश्चयात्, उत्साह धैर्यात् निश्चयात्, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। इसके ये करोगे बाकी सब आ जाएगा। उत्साह, इंथुजियाज्म टू डू डिवोशनल सर्विस, उत्साह होना चाहिए हमें भक्ति करने के लिए। दूसरा उत्साह धैर्यात् निश्चयात्, ठीक है। धैर्यात् मतलब एक तरह की कन्विक्शन है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका कन्विक्शन बताया गया है। कन्विक्शन मतलब कि यही प्रोसेस है, इसी से मेरा बेड़ा पार होगा, कन्विक्शन। द थर्ड इज धैर्य को पेशेंस भी कहा जाता है, मगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रपात ने लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कन्विक्शन दिया है। और तीसरा आता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन, जैसे मैंने बोला, उत्साह धैर्य निश्चयात्, ये तीन चीजें हमें होनी चाहिए। जब ये तीन चीजें हैं, और एडिशनल पॉइंट आई ऐड, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, कि भक्ति के संग में हमारी जो दृढ़ता है वो बनी रहती है। तो पहला तो हमें कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि जो खुद की मदद करता है मैं उसकी मदद करता हूँ। तो पहले हम खुद से तो ये उत्साह धैर्य निश्चयात् लाएं, तो उससे क्या है, फिर भक्त संग से हमारी और वृद्धि होगी। और ये जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग आप कह रहे हो, ये अपने आप आएगा। अब आप बोलो कि जब हम नए हमने भक्ति शुरू की होगी तो हम सिर्फ जप ही करते होंगे ज्यादा से ज्यादा, या रीडिंग या हियरिंग करते होंगे, मतलब प्रैक्टिकल सेवा में तो नहीं होंगे। मगर जब हम भक्तों के संग में गए तब सेवा भी करनी शुरू की। अब मैं अपना ही उदाहरण दूं, तो जब कॉलेज टाइम पे मैंने भक्ति शुरू की तो पहले चैंटिंग शुरू किया। मतलब मेरे को सुनने का ज्यादा था, रीडिंग मेरी इतनी ज्यादा थी नहीं, तो मेरे को रीडिंग, इतना किताबें पढ़ने का शौक नहीं था। तो लेक्चर बहुत सुने मैंने, लेक्चर सुने। तो अब मेरी जो फ्रेंड थी माता जी, वो काफी संग दिया करती थी, तो हम लोग डिस्कस बहुत करते थे। तो डिस्कशन हुआ तो फिर मुझे भी इच्छा हुई। एक्चुअली उस टाइम मेरी हियरिंग भी नहीं थी, कोई लेक्चर बोले तो लेक्चर भी नहीं सुनती थी मैं। तो जो मेरी फ्रेंड थी माता जी, जो मुझे भक्ति में लेके आई, तो उन्होंने मेरे बस चैंटिंग, उसने मुझे बोला था चैंटिंग करो। भगवत गीता मुझे बोला था, वो हिंदी में थी तो मुझे इतनी समझ नहीं आती थी।
तो मैं पढ़ती थी ऐसा रिचुअल, आई यूज्ड टू स्टडी, मगर कुछ इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं चलता था। तो बट वो मुझे रोज कॉल करके मुझे बोलती थी मैंने ऐसा सुना, वो प्रभुपाद ने ऐसा बताया, वो लेक्चर वन महाराज ने ऐसा बताया। तो मुझे में खुद इच्छा होगी यार मुझे भी तो बताना है, इसको ये अकेली बोलती जाती, मुझे भी कुछ बोलना है। तो इसमें मुझे बहुत सारे लेक्चर थे, मैंने भी सुनना शुरू किया, वहां से इच्छा पैदा हुई भक्त संघ में कि मुझे भी करना है। तो फिर वहां से फिर धीरे धीरे मंदिर गए तो सेवा भी करनी शुरू हो गई। तो वो कहाँ संघ में सेवाएं वगैरह बाकी प्रोसेस कहते हैं, फर्स्ट स्टेप इज श्रद्धा, देन साधु संग एंड देन भजन क्रिया, देन अनर्थ निवृत्ति। तो पहले श्रद्धा, ठीक है, हमारे प्रिलिमिनरी फेस होना चाहिए, साधु संघ से हमारे भजन क्रिया शुरू हो जाता है, ठीक है। एक कहीं ना कहीं एक संघ में आते हैं तो भजन क्रिया शुरू होती है। तो फिर भजन क्रिया जो है आगे की स्टेजेस में जाने के लिए उत्साह, धैर्य, निश्चय, तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है माता जी। तो ये होना, कभी भी आप सेवा करो तो एक उत्साह दिखाओ, हमेशा उत्साह हमारे पास होना चाहिए, और धैर्य, कन्विक्शन और धीरज भी होना चाहिए कि एक दिन में तो मैं परमहंस नहीं बन जाऊंगी, या एक दिन में मेरे सारे अनर्थास नहीं खत्म हो जाएंगे। इट्स अ रिपीटेड प्रोसेस, नीड टू डू अगेन एंड अगेन एवरी डे। मुझे इसको रोज करना है और रोज उसी उत्साह से करना है, उसी कन्विक्शन के साथ और दृढ़ता से करना है, तो ये आएगा। और एक कांस्टेंट संग रखिए भक्तों का, that will help you to progress in devotion, ठीक है। Got the point पूजा माता जी? जी माता जी मतलब ये है कि डेडिकेशन अगर होगा तो फीलिंग एंड विलिंग सब अपने आप आ जाएगी। डिटर्मिनेशन जरूरी है माता जी, और अगर आपका डिटर्मिनेशन थोड़ा ढीला पड़ता है तो किसी भक्त से बात कीजिए, ठीक है। अंडरस्टूड? जी माता जी। संग बहुत जरूरी है। और किसी का कुछ है? कई भक्त चले भी गए हैं वैसे, तो किसी और को अंत में कुछ कहना है? हरे कृष्णा। आज सेशन काफी लंबा चला गया, तो बट अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने प्रश्न पूछे, कुछ सुनने को भी मिला, तो इट्स गुड टू हैव द डिस्कशन। बिकॉज देखिए क्लास एक कोई हमारे कॉलेज की लेक्चर नहीं है। व्हेन वी कम्स इन एसोसिएशन और डिवोटीज, इट्स लाइक परासरा मतलब आदान प्रदान। तो आदान प्रदान में क्या है, हम कुछ सीखते हैं और कुछ अपना भी बताते हैं। So it's like loving exchange also. I'm also sharing something, you should also share something with me. So this is the proper way of dealing between the devotees. This is called Tushyanti cha Ramanti cha. ठीक है? So it's very nice you all spoke up. बहुत अच्छा लगा आप सबने बोला, तो धन्यवाद। ये सुप्रिया माता जी। माता जी मैं एक कहना चाहूंगी, जैसे लाइक God help those who help themselves. Yes. like भगवत गीता 6.24 में कहते हैं ना, so it's like मुझे ये कहना था, लाइक जब God those who help themselves, so यही था। जो खुद की मदद करते हैं भगवान भी मदद करते हैं। तो पहले हम प्रयास तो करें, तो हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमारे प्रयास देखते हुए सारे अरेंजमेंट खुद करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो आज यहीं पे विराम लेते हैं, काफी समय हो चुका है, मेरे सारी सेवाएं आज पेंडिंग पड़ जाएंगी, तो बट अच्छा लगा आप सबका संग लेके, धन्यवाद। सो विल स्टॉप हियर, सो लेट अस चैंट 3 times हरे कृष्णा। तो जो हमने सीखा देखा, तो प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, डोंट जस्ट रिमेन ऑन थ्योरेटिकल लेवल, वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो, हमें उसको अपनाना भी है जीवन में, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल प्रोग्रेस। सो विल फिनिश अप हियर, सो लेट्स चैंट 3 times हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, all the assembled devotees की जय। Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. हाँ जी, Hare Krishna.